اس لیکچر کو ضرور سنیں، شاید آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آج کی دنیا میں زندگی کو حسین اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمارے سامنے 3 ٹارگیٹس ہونے چاہیے، جنہیں ہم گول بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں اچیو کرنے کی ایک زبردست کوشش اور لگن بھی ہونی چاہیے۔ پہلے گول کے متعلق ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ برے وقت کے لیے کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپے سیونگ کی شکل میں بینک یا کہیں اور جمع ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں اوسط درجے کے لوگوں کو سامنے رکھ کے، جن کی تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے ہے، یا پھر چھوٹے بزنس مین جو اپنے بزنس سے پروفٹ کی شکل میں 20 سے 30 ہزار روپے کماتے ہیں۔ مگر یہ باتیں 50 ہزار سے 1 لاکھ روپے سیلری پانے والوں کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز والی بات ان کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی کہ دونوں ہی مہینے کی اینڈ میں اپنے اپنے خرچ کے اعتبار سے ٹھن ٹھن گوپال ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلے گول کے بارے میں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ تم گھر کے ذمہ دار ہو، یعنی 1 مین آرمی۔ ضرورت پوری ہونے کی لائن سے گھر کے تمام افراد کی نظر ہمیشہ تم پہ ہی ہے، تو ان کے متعلق بہتر سے بہتر سوچ تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ کھلے طور پہ یہ کہا جائے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے پاس ضرورت کے چند اسباب ضرور ہونے چاہیے، جیسے بینک بیلنس، 4 ویلر یعنی 4 چکا، اور ڈریم ہاؤس یعنی ذاتی مکان۔ فی الحال پہلے گول پہ ہی ہم فوکس کرتے ہیں۔ بینک بیلنس کی شکل میں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ آج کی مہنگائی اور مہاماری کے عالم میں گرے ہوئے درجے میں 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہونے ہی چاہیے، جنہیں ہم بڑھاپے کا سہارا کہہ سکتے ہوں، اور انہیں استعمال کیے بغیر ہمارے سارے کام آسانی کے ساتھ چل بھی رہے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، اور اپنے پریوار کو ہم نے ایک سنہرے دھوکے میں رکھا ہے کہ گھبراؤ مت، تمہاری ہر مصیبت میں ہم ساتھ ہیں۔ جبکہ ڈلیوری کیس کا معاملہ ہو، گال بلیڈر کے آپریشن کا معاملہ ہو، یا اور کسی ناگہانی حادثے کا معاملہ ہو، دوسروں کے سامنے دستے سوال اٹھانا یقینی ہے۔ ہمارا پریوار سورس آف انکم سے کہاں مضبوط ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، انکم لمیٹڈ ہے، پریوار کے سپنے بڑے ہیں، کیسے زندگی بسر ہوگی؟ ہم نے تنہائی میں کبھی سوچا ہے؟ سوچا ہوتا تو روح کانپ گئی ہوتی۔ کمانے کی لائن سے 20-30 ہزار روپے سے اوپر کی سوچ ہماری ہے ہی نہیں، جبکہ گھر کے سارے افراد کی نظر ہم پہ ہے کہ اگر کچھ ہوا تو بیٹے کہیں گے ابو سلامت ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ بیوی کہے گی میرے سرتاج ہے نا، ماں باپ کہیں گے جگر کا ٹکڑا ہے تو کس بات کا غم ہے؟ حالانکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کام کو ہم نے 15, 20, 23 سالوں تک کیا، اس نے ہمیں دیا کیا؟ ضرورت پوری کرنے کے علاوہ کچھ دیا؟ نہ تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ تحت ہم نے صرف اور صرف جان توڑ محنت کی، اور محنت کا صلہ یعنی ایک بڑا انعام دوسرے لے گئے۔ بچت کے نام پہ کچھ بھی نہ ہوا۔ سروے کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو 100 میں 80 لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی طرح گھر کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ بچت کے نام پہ کچھ رکھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے دھیرے دھیرے 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہم جمع کر لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم محنت سے جی چراتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
हम अपने कारखाने में, ऑफिस में 2-2 शिफ्टों के जरिए कड़ी मेहनत करते हैं, मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा होता है, इसलिए कि आमदनी 54 और खर्चा रुपया है। या फिर मन मार के जिंदगी गुजारने की आदत सी बन गई है। हम अपने आप से ये सवाल करें कि बरसों तुमने काम किए मगर कुछ न हुआ, क्या बाकी के सालों में उम्मीद है कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है? बार बार सवाल करें, जिंदगी का पहला गोल अचीव हुआ? यानी 2.5-3 लाख रुपए जमा हुए? नहीं जमा हुए तो कब जमा होंगे? मजबूर होके कहना होगा इम्पॉसिबल। जिंदगी की दौड़ में हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, मंजिल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अब हम दूसरे गोल पे नजर डालें और घर वालों से पूछें कि हमारे पास 4 चक्के की शक्ल में एक सेकंड हैंड ही सही गाड़ी होनी चाहिए जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके। शौक के बारे में नहीं कह रहा हूं। शौक तो BMW, ऑडी, मर्सिडीज और जगुआर से पूरा होगा। सब कहेंगे हां, एक 4 व्हीलर होना चाहिए। मेरे गमखार, मेरे अब्बू, मेरे शौहर, आखिर जरूरत के वक्त ऑटो रिजर्व करके हम इधर उधर तो जाते ही हैं। क्या ही बेहतर होता कि खुद के 4 चक्के से हमारी जरूरत पूरी होती। धूप, बारिश और जाड़े की मार से बचते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हां, वो तो है, मगर डैश डैश डैश। अब आखिर में चलते हैं तीसरे बड़े गोल की तरफ और पूछते हैं सबसे कि किराए के मकान में रहते हुए एक जमाना हुआ, अपना एक साथी मकान होना चाहिए। हमारी 12 साहिब खाना यानी मकान मालिक से तू मैं और खिचखिच हुई है, जबकि वक्त पे हम किराया अदा करते हैं, बावजूद के दब के रहना पड़ता है। क्या ख्याल है? सब कहेंगे वाकई एक छोटा सा ड्रीम हाउस तो होना ही चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का दखल हो, हम अच्छी तरह से पैर फैला सकें और दीवारों दर पे कील भी ठोक सके। गोया के इनडायरेक्ट और कभी डायरेक्ट बीवी बच्चों की तरफ से डिमांड होता है, अबू बैंक बैलेंस होना चाहिए, 4 चक्का होना चाहिए और एक छोटा सा घर भी। प्लीज खुद से सवाल करें कि बीवी बच्चों की ख्वाहिश और ये चाहत है, क्या इनकी चाहत पे कभी तुम फिट उतर सकते हो, खरा उतर सकते हो? तुमसे ये जो मांग रहे हैं कभी दे सकते हो? बेसाख्ता बोल उठोगे नहीं नहीं नहीं। अरे कोई तो सूरत होगी जिंदगी में उछाल पैदा करने की। ढूंढने वाले को खुदा मिल जाता है, किसी को अलादीन का चिराग मिल जाता है। हम अपनी कामयाबी को ढूंढे तो सही, किसी न किसी शक्ल में मिल ही जाएगी। पार्ट टाइम की शक्ल में अगर कोई काम मिले जिससे हमारे सपने पूरे हों और उस प्लेटफॉर्म के जरिए एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो, तो लेने में कोई हर्ज है? नहीं ना। तो फिर देर किस बात की? वो प्लेटफॉर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस का है। ऐसा है कि अपने काम से फारिग होकर इधर उधर टाइम पास के नाम पे जो वक्त गुजारी करते हो, रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां या बाजारों और चौराहों पर, उसे तुम छोड़ दो। इन्हीं औकात में पैसिव इनकम से जुड़ी ये बिजनेस इंडस्ट्री है जिसे हम MLM कहते हैं, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस। अब तक हम एक्टिव इनकम हासिल कर रहे थे जहां सिर्फ और सिर्फ हम होते, दूसरा कोई नहीं। हमारे आबाओ अजदाद यानी हमारे पुरखों ने भी उसी सिस्टम को फॉलो किया था, मगर कुछ न कर सके। जहां से चले थे वहीं लौट गए, इल्ला माशाअल्लाह किसी ने कुछ किया हो, वो बस उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि एक बड़ा तबका जिसने
अपना काम जीरो से शुरू किया था, उम्र और सेहत के ढल जाने के बाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के तहत अपने महवर पे, अपनी जगह पे लौट जाता है। जिसे हम शेर की जबान में कहते हैं, पहुंचा वहीं पे खाक जहां का खमीर था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसिव इनकम की खासियत यह है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ हम नहीं होते, बल्कि हमारे साथ काम की लाइन से बेशुमार लोग होते हैं। मगर यह धीरे धीरे होता है। जिनके काम के जरिए हमें हजारों लाखों घंटे मिलते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम के जरिए रोजाना 8 से 14 घंटे या पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा 420 घंटे मिल पाते हैं। इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। इसीलिए उस सिस्टम में हम बढ़ नहीं पाते हैं। मगर कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती है और बदले में हमें अपने बदन का मैल देती है। हम जिस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी बढ़ती है, हमारा बॉस बढ़ता है पावर ऑफ नेटवर्क के जरिए। हम उसके नेटवर्क में होते हैं, हमारा नेटवर्क नहीं होता है। इसीलिए पूरी जिंदगी हम लकीर के फकीर रहते हैं। यहां एक बात कहना चाहूंगा, नेटवर्क का नाम सुनकर हम जैसे लोगों को बहुत एलर्जी होती है, मगर जाने अनजाने में दूसरों को कामयाब करने के लिए हमने हर कदम पे नेटवर्क को अपनाया है। ये तो वही वाली बात हो गई, गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज। अलहक मुर्र, हकीकत कड़वी होती है, गुस्ताखी मुआफ। आपके मन में यह जरूर सवाल पैदा हो रहा होगा कि पैसिव इनकम लिया कैसे जाए, इसके लिए करना क्या होगा। तो मैं कहूंगा, सच्ची तारीफ। इस इनकम को लेने के लिए लोगों से बात करनी होगी। ईरान तुरान की नहीं, बल्कि पक्की और सच्ची बात करनी होगी। लोगों को इस इनकम के ताल्लुक से सही मैसेज देना होगा। बस इसी बात के पैसे मिलेंगे। सच्ची तारीफ ही तो करनी है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। और ये भी जहन नशी कर ले कि बिजनेस हवा में नहीं होगा। हवा में जो बिजनेस होता है उसे मनी रोटेशन वाला बिजनेस कहते हैं, जो बगैर हाथ पैर के होता है। यूं समझ लें कि रेत के टीले की तरह, जिसे दूर से देखकर प्यासा पानी समझता है, मगर करीब जाते ही उसे एक रेत का टीला नजर आता है, यानी धोखा नजर आता है। हमारा बिजनेस रेत के टीले की तरह नहीं है और हवाओं में गश्त करने वाला बिजनेस भी नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के जरिया रियल में दिखने वाला बिजनेस है। यूं समझ लें कि जो दिखता है वही बिकता है। बस इसके जरिया चलते फिरते हमें सच्ची तारीफ करनी है, वो भी रोजाना के 2-4 घंटे अपने काम को करते हुए। यकीन मानिए, एक वक्त आता है कि हमारे काम पे ये चलता फिरता बिजनेस भारी पड़ जाता है। तो मैं सच्ची तारीफ की बात कर रहा था। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर की तारीफ हम नहीं करते, फिल्म की तारीफ हम नहीं करते, दुकान मकान बाजार स्कूल मास्टर कॉलेज और हज्जाम की तारीफ हम नहीं करते? खूब करते हैं। वो भी लोगों को पकड़ पकड़ के करते हैं। हमारी तारीफ करने से उनका भाव और उनकी कीमत बढ़ती है। हमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर भी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ करना हमारी आदत में शामिल है। इसी अच्छी आदत को डेवलप करके क्या हम इस नए बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते? एक बात और जान लें कि 80% लोग खरीदारी के माध्यम से यूज होते हैं और 20% लोग 80% लोगों को यूज करते हैं। 80% लोगों को वो यूज करके अरबपति खरबपति बनते हैं और हम 80% लोग एडजस्टमेंट के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं।
हैरत तो इस बात पे है कि 20% लोगों को हमारी ताकत का खूब अंदाजा है, मगर अफसोस कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा है ही नहीं। अब तक अपनी खरीदारी के जरिए हम उनको आगे बढ़ा रहे थे। क्या दुकान बदलकर अपनी खरीदारी के जरिए हम खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी खरीदारी के 50% रुपए 20% लोगों में बढ़ते हैं तो यकीन करना मुश्किल होगा, मगर यही सच है। यानी हमारी कमाई का 50% हिस्सा मिडिल मैन के बीच यानी बिचौलियों में तकसीम होता है। अगर हम रोजाना 8 घंटे काम करते हैं तो समझ लें कि 4 घंटे काम अपने लिए हमने किया और 4 घंटे उनके लिए, यानी 40 साल अगर हमने कमाया है तो 20 साल की कमाई गैर महसूस तरीके से हमने उनको दे दी। हमारे वो अपने हैं। अरे अपनों के लिए भी मुफ्त में काम हम नहीं करते तो फिर उनके लिए क्यों? ये और बात है कि रिवायती अंदाज के सिस्टम को फॉलो करना हमारी मजबूरी है या हमारी मजबूरी थी, मगर इस नए सिस्टम के आ जाने के बाद मजबूरी और बहाने खत्म हुए। अलकिस्सा यहां आपसे इन्वेस्टमेंट या किसी तरह की दुकान खुलवाने का या रुपए फंसवाने का हरगिज इरादा नहीं। गुड न्यूज ये कि इन्वेस्टमेंट किसी और का, आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी, और आप जहां हैं वहां डेकोरेशन के साथ दुकान खोलने का अज़्म हौसला भी उसी का। उस पे आपसे ये कहा जाए कि इस दुकान के मालिक आप, कैसा लगेगा? ये बेशकीमत तोहफा आपके हवाले। कंपनी कहती है प्रॉफिट का 40% मेरा और 60% आपका, मगर इनकम प्लान के तहत। खुशी नहीं होगी? मेरे दोस्त, जागती आंखों से आप मुंगेरी लाल के सपने नहीं देख रहे हैं। हकीकत से पर्दा उठा के सच्ची और पक्की खबर दी जा रही है। अच्छा ये बताएं, ऐसा बर्ताव हमारे शहर में हमारे साथ अगर कोई करे तो उसे अपना मसीहा हम समझेंगे या नहीं? हमारा वो गमखार होगा? बिल्कुल होगा। जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। यूं समझ लें कि इस बिजनेस के जरिए ऐसा हो रहा है, और जाते जाते इस गलतफहमी को भी दूर कर लें कि हम जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं उन्हें ब्रांडेड किसने बनाया? क्रिकेटर्स? फिल्मी सितारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उन्हें यूज करके ब्रांडेड हमने बनाया है, मगर ब्रांड एम्बेसडर वो लोग कहलाते हैं। ये हमारा मजाक नहीं तो और क्या है। लिहाजा मेहनत के इस नए मैदान में जो कि समझा बुझा हुआ है, आप खुद को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं और अपनी ताकत को समझें। और हां, इस बिजनेस को कबूल करने के लिए मुझसे वक्त निकाल कर जरूर मिले। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। आपका शुभ चिंतक, खैर अंदेश, मोहम्मद जफर इकबाल फ्रॉम जमशेदपुर।